عالمی وبا ایک ہی روز میں 13 افراد کی جان لے گئی۔ ملتان میں 4، مظفر گڑھ 3، میاں والی اور سرگودا میں 2 اموات ریکارڈ کی گئی۔ بہاولپور اور رحیم یار خان میں بھی ایک مریض دم توڑ گیا۔ ادھر نشتر اسپتال میں 22 مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جن میں سے 16 کی حالت تشویشناک، 3 وینٹی لیٹر پر منتقل، جبکہ سرگودا میں 39 افراد کرونا کا شکار ہوئے۔ سرگودا ڈویژن میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 357 تک جا پہنچی۔ بہاولپور میں مزید 3 افراد میں کرونا کی تشخیص بھی ہو گئی۔ بہاولپور میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 429 ہو گئی۔ سول ہسپتال میں 37 مریض زیر علاج ہے، جبکہ 13 کا وینٹی لیٹر پر علاج جاری ہے۔ ڈی جی خان میں 7 اور میاں والی میں 5 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ عالمی وبا ایک ہی روز میں 13 افراد کی جان لے چکی ہے۔ ملتان میں 4، مظفر گڑھ میں 3، میاں والی اور سرگودا میں 2 اموات ریکارڈ ہوئی، جبکہ بہاولپور اور رحیم یار خان میں بھی ایک مریض دم توڑ گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، بہاولپور میں بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں بھی کرونا مریضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہسپتال انتظامیہ نے 42 ٹیسٹ کیے، 10 پازیٹیو آئے۔ کرونا کا شکار ہونے والوں میں 1 ڈاکٹر اور نرس بھی شامل ہے، جبکہ ڈاکٹر اور نرس نے خود کو گھر میں آئسولیٹ کر دیا۔ بہاولپور میں 8 مریضوں کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بہاولپور وکٹوریہ اسپتال میں بھی کرونا مریضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ اسپتال انتظامیہ نے 42 ٹیسٹ کیے، جن میں سے 10 پازیٹیو آئے۔ کرونا کا شکار ہونے والوں کی اگر بات کی جائے تو ان میں سے 1 ڈاکٹر اور نرس بھی شامل۔ ڈاکٹر اور نرس نے خود کو گھر میں آئسولیٹ کیا۔ ڈاکٹر عامر بخاری کے مطابق 8 مریضوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر رحیم یار خان میں 6 سال قبل بننے والی غلہ منڈی خطرے کی زد میں، ترقیاتی کاموں کی مد میں پیسے جمع ہونے کے باوجود فائر سیفٹی CCTV پروجیکٹ ابھی تک فائلز میں ہی موجود، بڑے وزن کے تول کے لیے کنڈے کی سہولت موجود نہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، رحیم یار خان میں 6 سال قبل بننے والی غلہ منڈی خطرے کی زد میں ہے، جبکہ ترقیاتی کاموں کی مد میں پیسے جمع ہونے کے باوجود فائر سیفٹی CCTV پروجیکٹ ابھی تک فائلز میں ہی موجود ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس لیں گے بیورو چیف عاصم صدیق سے۔ جی عاصم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ نیو غلہ منڈی رحیم یار خان بڑا تجارتی مرکز ہے، جس میں جناس کا کام ہوتا ہے۔ اس وقت کپاس کا سیزن ہے، ہر طرف کپاس ہی کپاس ہے۔ اسی طرح جو بھی اجناس جس بھی موسم میں آتی ہے تو یہاں پر اس کی ٹریڈ ہوتی ہے، اور یہ تجارتی مرکز شہر سے باہر قائم کیا گیا تھا۔ بڑی غلہ منڈی، اس کا مقصد یہ تھا کہ شہر میں سہولیات کی دستیابی کم ہے، وہاں پر رش ہو جاتا ہے، اس کو باہر نکالا جائے، تجارتی سہولیات یہاں پہ دی جائیں، مگر یہاں پر تجارتی سہولیات نہیں دے پا رہی۔ یہ 6 سال قبل یہ منڈی بنائی گئی تھی، مگر ابھی تک ترقیاتی کام مکمل نہیں ہو سکے۔ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو آگ جہاں پہ لگ سکتی ہے، تو اس کو بجانے کے لیے ریسکیو 1122 کی فائر بریگیڈ یہاں پر باؤنڈ کی ہوئی ہے، مگر ریسکیو یہاں پر فائر بریگیڈ پورا جو اس کو سیفٹی ہے وہ نہیں لگایا گیا۔ یہاں پر سیکیورٹی کے لیے CCTV کیمرے منظور ہے، CCTV کیمرے نہیں لگائے گئے۔ یہاں پر بڑا وزن کے لیے کنڈا منظور ہے، مگر وہ بھی ابھی تک نہیں لگایا۔ 6 سال سے یہ منڈی یہاں پر تجارتی مرکز کیا جا رہا ہے، لوگ یہاں پر کاروبار کرتے ہیں، ان کو جو سہولت دینی چاہیے، جو ان کو سیفٹی دینی چاہیے، وہ یہاں پر نہیں ہے۔ صدر انجمن آڑتیاں انوار احمد نجمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انوار احمد نجمی صاحب، بڑا تجارتی مرکز، یہاں پر فیز 1، فیز 2، فیز 3 تمام دکانیں بن گئی، مقررہ مدت میں سب کچھ ہو گیا، مگر پھر بھی عوام کو کیوں نہیں سہولت مل رہی؟ یہاں پر فائر سیفٹی نہیں ہے، سیکیورٹی کے لیے CCTV کیمرے نہیں ہیں، اور خاص طور پر وزن کے لیے کنڈا۔ یہ بڑے پروجیکٹ ہیں جو کاروبار کے لیے بڑے اہم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے وہ یہ 3 فیز کے تھے، 2 فیز پورے ہو گئے ہیں، تیسرا فیز رہتا ہے۔ ہم نے کچھ 6 سال پہلے گورنمنٹ کو پیسے ان ساری چیزوں کے جمع کرائے ہیں، اور لیٹ سے لیٹ ہو جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر پیمنٹ ہو تو پھر لیٹ ہونے کا کوئی نہیں ہونا چاہیے پرابلم۔ اصل چیز تو ہوتی ہے کہ پیسہ نہیں ہے تو جو کام نہیں ہو رہا۔ 6 سال ہو گئے ہمیں مارکیٹ کمیٹی کو پیسے جمع کرائے، بس وہ کوئی پھیلن لاہور جاتی ہیں، پھر واپس آ جاتی ہیں، یہ نہیں ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے، وہ آپس میں ہی بس لگے رہتے ہیں۔ آپ مگر جاؤ کو جا کر کو تھوڑا بہت کرا لو تو کرا لو، لیکن اپنے آپ کوئی کام نہیں ہوتا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ بڑا کام ہے کہ فائر سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے CCTV کیمرے، خدا نخواستہ کوئی حادثے تو ضروری چاہیے ہمیں، وہ کو اگر ٹرالی پوری تولنی ہو تو وہ ہمیں کنڈا بھی چاہیے، وہ بھی ابھی تک نہیں لگ رہا۔
कितने पैसे आप लोगों ने दे चुके हैं मार्केट कमेटी को? पैसे हमने वो जितनी दुकानों के बनते थे वो भी दे दिए हैं, जो वे डेवलपमेंट के काम के से वो भी सारे दे दिए हैं। वो 6 साल हो गए पैसे इनको पास जमा है हमारे को, तकरीबन को 12-14 करोड़ रुपया जमा है इनके पास। बिल्कुल, यहाँ पे 12-14 करोड़ रुपए रकम जमा है, दुकानदारों ने भी जमा कर लिया, मंडी भी आबाद कर दी गई है। जी बिल्कुल, प्रोजेक्ट्स अभी तक फाइल्स तक महदूद हैं। आसिम सदीक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैक्ट्रियों का जहरीला मवाद और सीवरेज का गंदा पानी आबी हयात और इंसानों के लिए खतरा बन गया। सीवरेज और फैक्ट्रियों का जहरीला पानी खुलेआम नहरों में डाला जाने लगा। मुज़र सेहत पानी फसलों को भी लगाया जाता है और मुकामी आबादी भी इसे इस्तेमाल करती है। इब्राहिम खान की रिपोर्ट। शहर मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैक्ट्रियों का फुजला और सीवरेज का पानी खुली आबादी में आवाम के लिए मसला बन गया। मुल्तान के नवाही इलाके चाह अब्दुल्ला में फैक्ट्रियों का फुजला इलाके का मसला बन गया। इलाके की नहर में फैक्ट्रियों के जहरीले पानी के बाइस ताफुन फैलने लगा। दूसरी जानिब नौबहार नहर में भी डाला जाने वाला सीवरेज का गंदा पानी आलूदगी में इजाफा कर रहा है। इलाका मकीन यही आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। जहरीला पानी फसलों को भी लगाया जा रहा है। कई बार हम इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। इससे कई किस्म की बीमारियां भी फैल रही हैं और जनाब ये इसके ऊपर हमने पहले भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन हमारी आवाज़ को आगे लेके जाने वाला कोई नहीं था। यही पानी फसलों के अंदर लग रहा है, यही लोग फसलें वगैरह खाते हैं तो तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। कंप्लेन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इन्हें कुछ कहने वाला नहीं है। ये हुकूमत की भी थोड़ी सी नाअहली है। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात जफर इकबाल का कहना है कि सीवरेज के पानी के हवाले से एमडी वासा को मरासला जारी किया, लेकिन फंड्स न होने के बायस डिस्पोजल पर काम का आगाज नहीं हो पा रहा। इनका कहना था कि अगर फैक्ट्रियों ने केमिकल वाले पानी के लिए इकदामात ना किए तो उनको जुर्माने किए जाएंगे। हमने वासा मुल्तान को लेटर्स भी तहरीर किए हैं कि आप इसके लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और ये ताकि जो साफ पानी नहरों का ही आलूदा ना हो। और इस हवाले से एमडी वासा का मौक़िफ़ है कि हमें इसके लिए कुछ 40 अरब रुपए के फंड्स चाहिए। अब वो गवर्नमेंट पंजाब से फंड्स की डिमांड कर रहे हैं ताकि वो उनको फंड्स मिल जाएं और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग जाए। नहरों के साथ आबाद लोग केमिकल और सीवरेज मिला पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। यहाँ तक कि ये लोग नहाने के लिए भी यही पानी इस्तेमाल करते हैं। सीवरेज का पानी और फैक्ट्रियों का जहरीला केमिकल मिला पानी साफ पानी की नहरों में डालना माहौल को मजीद आलूदा बना रहा है, जो कि न सिर्फ आबी हयात बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी खतरनाक है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली रियाज और मकसूद चौहान के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। मुल्तान की बात डेरा गाजी खान का रुख करेंगे, जहां पर सिखानी कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। सीवरेज का पानी गलियों में जमा, राहगीरों को मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों के इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, मेन कॉलोनी के सामने रोड को बंद कर दिया। इलाका मकीनों ने सीवरेज का मसला हल करने का मुतालबा किया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, इस टाइम मौजूद हैं डेरा गाजी खान के तोसा रोड पर सिखानी कॉलोनी के मकीन। यहाँ पर सरापा एहतजाज है सीवरेज के नाकिस निज़ाम के खिलाफ और यहाँ पर इन्होंने मेन रोड को बंद कर दिया है। मेरा कैमरामैन उस्मान नवाज दिखा सके तो ये सूरत हाल है। मेन रोड बंद होने से ट्रैफिक भी जैम है और लोगों को भी दुश्वारी का सामना है। इलाका मकीन जो है ये भी यहाँ पर सरापा एहतजाज है और मुतालबा करते दिखाई जाए कि इनके मसले को हल किया जाए। सर, क्या इशू है, क्या कहना चाहेंगे? जी, रास्ता भी बंद किया हुआ है आपने, ये कोई मसले का हल तो नहीं निकल सकता रास्ता बंद करना? मसला सबसे बड़ा ये है कि 8 महीने हो गए हमारी ये गली की सीवरेज बंद है। हम मुतवातिर कमिश्नर को, कमेटी को इतला दे रहे हैं, वो इस पर कोई अमल नहीं कर रहे हैं और ना यहाँ से कोई नमाजी गुजर सकता है ना कोई लेडीज गुजर सकती है। हो सकता है 4 दिनों बाद कि हमारे मकान गिरना भी शुरू हो जाएं। कोई हमारी बात सुनता भी नहीं है, कोई उस पर कोई इकदाम ना गवर्नमेंट करती है, ना कोई कमेटी वाले आते हैं। कोई कमिश्नर को दरखास्तें दे दे कि हम लोग तंग हो गए, कोई नहीं सुन रहा। और यकीन करें कि हमारी ये मकान जो है ना अभी गिरने वाले हैं। ये क्या गवर्नमेंट ये चाहती है कि यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो जाए, ये मर जाए, फिर इकदाम करेगी गवर्नमेंट? नहीं, ये सरासर इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है हमारे साथ कि हम उसको दरखास्तें दे के आते, कमेटी वाले भी नहीं आ रहे, कोई भी नहीं आ रहा। भाई क्या कहना चाहेंगे? रोड नहीं खोलेंगे जब तक मसला हल नहीं होगा? हम नहीं रोड इंशाल्लाह भाईजान, बात ही है, हमारा मुतालबा है कि हनीफ पिताफी से और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आला और जरताज गुल थे, क्योंकि वहाँ यहाँ से वोट लेके गए हैं। अवाम का हमारा राइट है, क्योंकि हमें काम चाहिए। हम वोट देते किस लिए देते? इसलिए देते क्या फलू आबादी के लिए और समाजी काम चाहिए, क्योंकि इसलिए तो वोट नहीं। एंड वक्त
तो हम ऐसा नहीं करेंगे, वोट पहले काम लेंगे फिर वोट देंगे। क्या मुश्किलात आती हैं, क्या कहना चाहिए? मुश्किलात ये है कि अब जिस तरह है ये अबाउट 4 to 5 years हो गए हैं कि गली में पानी का सीवरेज का निज़ाम खराब हुआ है, कोई इंतजाम नहीं हो रहा। यहाँ पे यानी कि मेन रोड है, यहाँ पे गाड़ियाँ वो हो जाती हैं, हैवी व्हीकल्स आती हैं, तो अब ये खड्डा हुआ पड़ा मेन, आते जाते लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। या अगर सीएम साहब का कोई टूर होता डीजी खान का, तब ये सारे एक्टिव होते, उसके बाद कोई खबर नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो इलाका मकीन है सरापा एहतजाज है और मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर इनका जो सीवरेज का मसला है इसको हल किया जाए। इस टाइम भी मेन रोड ब्लॉक है और ट्रैफिक बिल्कुल इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। आशर इशफाक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक डोगर ने फील्ड दफातर का अचानक दौरा किया। फारूक डोगर ने मुमताज आबाद, गुलशन मार्केट, फील्ड दफातर में गैर हाजिर क्लर्क को मुअत्तल कर दिया। दौरान चेकिंग फील्ड दफातर में पैदाइश, वफात, शादी के अंदराज में बेशुमार बेजाब्तियों का इंकशाफ हुआ। दौरान चेकिंग मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के MORs के पास दफातर में जरूरी रिकॉर्ड ही नहीं था। फारूक डोगर की कमिश्नर मुल्तान को MORs और क्लर्कों के खिलाफ पेपरा रूल्स के तहत कार्रवाई की सिफारिश। कमिश्नर मुल्तान ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में डिसिप्लिन कायम करने का टास्क दिया। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ने इस मौके पर यह भी कहा कि कमिश्नर को तहरीरी तौर पर कार्रवाई के बारे में लिख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। खबर यह कि मियांवाली यूनिवर्सिटी रोड के दरमियान मौजूद बिजली का खंभा खतरे की घंटी बन गया। राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद हादिसात रुनुमा हो चुके हैं। मजीद अपडेट करेंगे अख्तर मजाज। जी अख्तर। जी बिल्कुल, फेस्को इंतजामिया की गफलत और नाअहली की इंतहा हो गई। रोड के दरमियान में बिजली का पोल मौजूद है, लेकिन इंतजामिया को इसके हवाले से कोई परवाह नहीं है कि यहाँ पे मुताद्दिद एक्सीडेंट भी हो चुके हैं और लोगों का नुकसान भी हो चुका है। यहाँ के करीबी मकीन जो है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। क्या कहेंगे भाई, आपकी ये 7 दुकान है, रोड के दरमियान में ये पोल लगा हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? भैया जी, रोड जो है मसरूफ तरीन रोड है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, ये साथ में एक स्कूल है और बड़ा स्कूल है। जब भी छुट्टी होती है तो यहाँ पे काफ़ी रश बन जाता है। अब ये खंबा है, खंबे की वजह से जब यहाँ से जो गाड़ियाँ जा रही होती हैं उन्हें बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। 1-2 हादसात हमारे सामने हो भी चुके हैं। मैंने खुद बताते खुद DC को मैसेज किया है, व्हाट्सएप किया है, उन्होंने सीन भी किया है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 1-2 बार गवर्नमेंट की गाड़ियाँ यहाँ पे आई हैं और खाली फोटो सेशन करके चली गई हैं। इन्होंने अमली तौर पे कोई काम नहीं किया। हमने राब्ता किया सड़क वालों से भी, फेस्को वालों से भी। सड़क वाले कहते हैं कि फेस्को वालों की जिम्मेदारी है, फेस्को वाले कहते हैं कि ये सड़क वालों की जिम्मेदारी है, और DC दरमियान में बैठ के मेरे ख्याल में तमाशा ही देख रहे हैं। हालांकि उन्हें पता है, सारा कुछ पता है, लेकिन अगर दफ्तर से बाहर निकल के प्रैक्टिकल आए तो उन्हें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है बाहर। जी, बताया गया कि DC को भी इस चीज की निशानदेही की गई है, लेकिन DC ने भी कोई नोटिस नहीं लिया। क्या कहेंगे, कितने हादसात हुए हैं? आप साथ ही बैठे हुए हैं, क्या देखते हैं? देखिए ना, रोड के दरमियान में बिल्कुल ये खंबा लगा दिया गया। रोड को उस तरफ से गुजरना है, इस तरफ से गुजरना है, दरमियान में खंबा है और खंबे के अंदर बिल्कुल मेन रोड तरगंग रोड, यानी कि ये इस्लामाबाद रोड है और इसके साथ ही बिल्कुल ये रोड है और उसके साथ यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। तो आए दिन जहाँ पे हादसात होते रहते हैं, यहाँ के ना गाड़ियाँ इसके अंदर आ जाती हैं, इस तरह बड़ा मसला बनता है इनके लिए। तो जो जिम्मेदार इदारे हैं उनको चाहिए कि ये जो गफलत है फेस्को की, इसको देखें और इसको यहाँ से जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। जी, जल्द से जल्द इस पोल को यहाँ से हटाया जाए। बिल्कुल कोई नोटिस नहीं लिया जाता। अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दुनियापुर की सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। याकूब ताहिर अपडेट करेंगे। बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। ये दुनियापुर का बाईपास रोड है, जिसे कि यहाँ पे जो देही इलाके के लोग हैं वो दूसरे शहरों में जाने के लिए इसी रोड को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो दिन के टाइम जो है दुनियापुर शहर के अंदर से भारी और जो हैवी गाड़ियाँ होते हैं उनका गुजरना जो है ममनू है। लेकिन ये रोड अरसा दराज से इसी तरह से टूट फूट का शिकार है। यहाँ से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त जो है कुछ राहगीर मेरे साथ मौजूद है, मजीद इन्हीं से जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भजन, ये रोड मेन मतलब सड़कों के साथ मिलता है, मोटरवे के साथ, लेकिन यहाँ बिल्कुल टूट फूट हुई है। रोज़ाना हज़ारों गाड़ियाँ गुजरनी होती हैं, सारी टूट फूट का शिकार हो रही हैं। आना जाना बहुत मुश्किल है। सड़क की सूरत हाल आपके सामने है। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि इसके ऊपर जो है काम करें, इसको सही करें, क्योंकि गाड़ियों का नुकसान होता है। बहुत गरीब लोग हैं और वो भी यहाँ से गुजरते हैं। देही इलाका है सारा और आने जाने का मेन रास्ता यही है दूसरे मोटरवे पे जाने के लिए, क्योंकि शहर से तो गुजर नहीं सकती बड़ी गाड़ियाँ।
कोई भी गाड़ी हो यहाँ से गुजरनी होती है और बहुत मुश्किलात हैं यहाँ पे। आला हुकाम से गुजारिश है कि इस पे तवज्जो दें। जी बिल्कुल, जैसा कि राहगीर ने बताया कि याकूब आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अब सरगोदा से खबर शामिल करेंगे। ज़्यादी रोड का तामीराती काम मुकम्मल, रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 2 करोड़ की लागत से 500 मीटर से लंबी ज़्यादी रोड को बनाया गया। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह से। जी फसी, इस वक्त मैं सरगोदा की ज़्यादी रोड पर मौजूद हूँ जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार थी और अब सूबाई वजीर अंसर मजीद नियाजी की जानिब से इफ्तिताह किया गया और इस जो रोड है इसकी तामीर और मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। इस हवाले से यहाँ के मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या मसाइल दरपेश थे और क्या समझते हैं कि रोड बनने से कितनी जो सहूलत फराहम होगी आप लोग? सर सहूलत तो ये होगी, लोगों को बहुत तकलीफ थी यहाँ पे, कोई इस रोड पे चलना अच्छा नहीं समझता था। अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया, अंसर भाई से अल्लाह पाक ने ये काम लिया है, तो ये 35 साल के बाद ये रोड बना है। 35 साल के बाद बड़े बड़े इस इलाके में MNA भी आए और तहसील नाज़म भी आए, MPA भी आए, लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला ने ये अंसर भाई से काम लिया है और इंशाल्लाह बहुत प्यारा रोड बना है और इंशाल्लाह इस दुकानदारों को बहुत सहूलत पैदा होगी। सर आप किस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहेंगे कि इस रोड का लोगों को, आम नास को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी पैदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के मकीन मौजूद थे। ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर हुई है। फसीउल्लाह बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी गई सहूलत की डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। इसी पर बात करेंगे जुनेद अनवर से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से 31 दिसंबर को कंस्ट्रक्शन को दी जाने वाली मराहत जो है वो ख़त्म होने जा रही हैं। इस हवाले से जो है वो ताजिर कम्युनिटी हो, कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता अफराद हो, उनकी जानिब से अपील की जा रही है कि जो कंस्ट्रक्शन को रिलीफ की मुद्दत है उसके अंदर इजाफा किया जाए। इस वक्त सीनियर वाइस सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान शेख अकरम हकीम और सब मौजूद, उनसे बात करेंगे। मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा करूँगा कि इसके मियाद में इजाफा किया जाए, क्योंकि घर बनेंगे, दफ्तर बनेंगे तो हमारे कारोबार में भी इजाफा होगा और जब ये बनना बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे तो हमारे कारोबार में इजाफा होने के बजाय कमी आएगी। पहले ही हम लोग बड़े परेशान हैं। मैं तो इमरान खान साहब से यही मुतालबा करूँगा कि जब तक कम अज़ कम वो बैठे हैं, जब तक की मुद्दत बढ़ा दें। वो समझते हैं मैं साल और बैठा हूँ तो साल की बढ़ा रहे हैं, वो समझते हैं मैं 2 साल और बैठा हूँ तो 2 साल की बढ़ा रहे हैं, वो समझते हैं मैं 3 साल और बैठा हूँ तो 3 साल की बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मजदूर मिस्त्री वो काम पे होंगे तो बेरोजगारी में कमी आएगी। मैं तो इमरान खान साहब से यही मुतालबा करूँगा वो कंस्ट्रक्शन में टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। जी बिल्कुल, मरकजी तंजीम ताजरान जुनेद आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। बहावलपुर में पीडीएम की रैली से पहले नून लीग मुतहरिक होगी। राना सनाउल्लाह, अवैस लगारी समेत पंजाब की क़यादत बहावलपुर पहुंचेगी। कायदीन की आमद पर पार्टी का तंजीमी इजलास भी मुनक्किद होगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पीडीएम ने बहावलपुर के अंदर अपनी एक एहतजाजी रैली का प्लान बनाया है, जिसके अभी तक मुमकिन होस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और मुस्लिम लीग नून को बहावलपुर के अंदर मुतहर्रिक करने के लिए, तमाम कारकुनान को यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए और रैली को कामयाब बनाने के लिए आज एक तंजीमी इजलास भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है, जिसकी सदारत यहाँ पर जो पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह वो करेंगे और साथ में जनरल सेक्रेटरी अवैस लगारी वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं बहावलपुर की, तो जजा हाउस के अंदर इस वक्त जो तमाम कारकुनान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। जो कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई जा चुकी हैं, पंडाल यहाँ पर सज चुका है, कारकुनान के आने का सिलसिला भी जारी है, जबकि उनके लिए जहाँ पर खाने पीने का जो इंतजाम है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है और तमाम लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। जो कि अभी तक की इतलात है उसके मुताबिक राना सनाउल्लाह तकरीबन 4 बजे के बाद इस पंडाल में आएंगे, जबकि उससे पहले उनकी जो सऊद मजीद हैं सेनेटर साहब का, उनके घर के अंदर भी एक छोटी सी एक्टिविटी है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ उनकी पर्सनल मुलाकात होगी। तंजीमी इजलास मुनक्किद होगा। तैयब सैफ बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान में मसीही बरादरी का खुशियों भरा त्यौहार क्रिसमस। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने तमाम मज़ाहब के मजहबी रहनुमाओं के साथ मिलकर क्रिसमस केक काटा। इसी पर बात करेंगे आमिर भट्टी से। बिल्कुल, मसीही बरादरी की खुशियों भरे त्यौहार क्रिसमस में जिले इंतजामिया भी शामिल हो। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने न सिर्फ मसीही बरादरी बल्कि अपने मुसलमान भाइयों और हिंदू बरादरी के साथ मिलकर क्रिसमस का केक काटा है। इसी हवाले से जानते हैं उनसे, सर क्या पैगाम देना चाहेंगे और किस तरह से मसीही बरादरी को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं?
جی بالکل، مصری برادری باقی تمام مائنورٹیز کی طرح ہمارے ملک کی ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ آف آر سوسائٹی ہیں. ہمارے ہر طبقہ، بیوروکریسی ہو، پولیس ہو، آرمڈ فورسز ہوں، ہر جگہ ان کی ریپرزنٹیشن ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سارے پاکستانی ہیں اور پاکستانی بھائی ہیں. کرسمس کا تہوار جو ہے وہ ان کے لیے بالکل اسی طرح مقدم ہوتا ہے جس طرح ہمارے لیے عید کا. ہماری ہر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں ہمارے سارے مائنورٹیز کے بھائی کرسچنز بھی اسپیشلی شریک ہوتے رہے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے ہم نے کچھ 2 ہفتے پہلے ہفتہ رحمت للعالمین منایا، اور خوش آئین بات یہ تھی کہ تمام مائنورٹیز کے لوگ تشریف لائے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو ہمارے لیے بھی یہ اتنا ہی ضروری ہے کہ جب ہم انٹر فیتھ ہارمنی کی بات کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہوں. تو جی ہم نے، جیسا کہ آپ کا کیمرہ دکھائے گا، ہم نے کیک کاٹا. ہم تمام کرسچن کمیونٹی کو اسپیشلی وی وش دیم اے ویری میری کرسمس. اور میں انشاءاللہ تعالی کل جہاں جہاں ہو سکا چرچز میں جو ہماری روایت ہے، میں کیک لے کے خود بھی جاؤں گا اینڈ ویل بی پارٹ آف دیئر سیلیبریشنز. بالکل مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہے. رحیم یار خان سے عامر بھٹی آپ ہم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. ملتان سرکٹ ہاؤس میں کرسمس کیک کاٹا گیا. اس حوالے سے مزید اپڈیٹس لیں گے امجد ملک سے. جی امجد. ملتان سرکٹ ہاؤس میں مسیح برادری کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ہمراہ، جو کہ یہاں پہ ڈائریکٹر بھی افسران جو ہیں اور یہاں پہ موجود ہیں، کیک کاٹا ہے. ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک صاحب موجود ہیں. سر بتائیے گا کہ کل کرسمس ہے اور آج کیک کاٹا گیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آج سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے حوالے سے ہم نے یہاں پہ ایک تقریب کی ہے. ہمارے جتنے ورکرز ہیں، کرسچن کمیونٹی سے بہن بھائی ہیں ہمارے، ان کے ساتھ ہم نے خوشی میں ان کے شریک ہوئے ہیں. صبح بھی انشاءاللہ میں اور سی پی او صاحب، ہمارے جتنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں، ہم انشاءاللہ ان کی خوشی میں شریک ہوں گے. ان کی چرچز کا وزٹ بھی کریں گے، سیکیورٹی آڈٹ بھی کریں گے، اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ فیلڈ میں موجود ہوں گے. سر پہلے جو ہے مسیح برادری ان کے لیے بازار لگائے جاتے تھے، اس بار بازار نہیں لگایا گیا ضلع انتظامیہ کے حوالے سے، کیا کہیں گے؟ کووڈ کے حوالے سے بیسیکلی جو ایس او پیز آئی ہیں اس حوالے سے یہاں پہ سینسٹیوٹی زیادہ ہے ملتان میں، تو اس لیے ان چیزوں کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے ڈسکریج کریں. باقی انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہیں. ابھی یہ سیریمنی بھی ہم نے کی ہے، اور کل بھی انشاءاللہ میں اور سی پی او صاحب، ہمارے جتنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں، ہم ان کے ساتھ وہیں پہ موجود ہوں گے، ان کی خوشیوں میں انشاءاللہ شریک ہوں گے. جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے. ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ. ملتان کے رخ کریں گے. کرسمس کے حوالے سے پولیس لائن میں بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا، اس پر بات کریں گے ماہر عمران سے. بالکل، اس وقت ہم پولیس لائن میں موجود ہیں اور 25 دسمبر مسیح برادری کے جو بڑا تہوار ہے، عید ہے، اس حوالے سے آج ان کی خوشیوں میں ان کو شریک کرنے کے حوالے سے ملتان پولیس کی جانب سے یہ ایک اہم جو اقدام ہے وہ کیا گیا ہے. اور پولیس لائن میں تمام جو ملازمین ہیں ان کی فیملی کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہوا، کھانا، دعوت و طعام، اور ان کے ساتھ جو ان کو خاص طور پر ان کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے خراج تحسین پیش کیا گیا. ایس پی کامران صاحب بھی موجود ہیں، مسیح برادری کے جو رہنما ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم آپ سے بات کریں گے کہ ملتان پولیس کی جانب سے آپ کی خوشیوں میں آج کی یہ رنگ میں رنگ جانا، کیا کہیں گے؟ اس آیت سے شروع کروں گا، اس گیت سے جو کرسمس کیرل تھا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین. یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ جب ہمارے ادارے جو ہیں وہ منارٹیز کو ساتھ لے کر ملک پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے لے کر چلتے ہیں. سٹی پولیس کا، کامران صاحب کا اور سی پی او صاحب جنہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ منارٹیز کو منارٹیز نہیں سمجھتے، بلکہ کرسمس سیلیبریٹ کرنے کے وسیلے سے وہ سب کے ساتھ ہیں اور اس خوشیوں کو بانٹتے ہیں. یہاں پہ ایس پی کامران صاحب بھی، ایس پی کینٹ جو ہیں وہ موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے کیا میسج دینا چاہیں گے مسیح برادری کو آج اس تہوار کے حوالے. دیکھیں، میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو میں ان کو مبارکباد پیش کروں گا. ان کی خوشیوں میں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور میری طرف سے بھی اور میرے سی پی او صاحب کی طرف سے اور انٹائر پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی میں ان کو مبارک. اور میسج میں یہ کنوے کروں گا کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم آپ کی خوشیوں میں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے غم میں بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے بشپ صاحب نے وہاں پہ بڑی ایک پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ خوشیاں بانٹنے سے پھیلتی ہے اور غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ میسج تھا آج کا. اور آخر میں اپنے مسیح برادری سے یہی
एक वो भी करूंगा। मेरा भी एक मैसेज है कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो एक मैसेज था, जो सब्र, जस्टिस और इक्वालिटी का, सेम पुलिस जो है ना, मुल्तान पुलिस का भी वही मैसेज है। जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हक और सच के लिए खड़े हुए, इसी तरह मुल्तान पुलिस भी इंशाल्लाह हक और सच के लिए खड़ी होगी। थैंक यू। पुलिस भी इनकी खुशियों में शामिल है। मेरा कैमरामैन यहाँ पे दिखा है, तो ये फैमिलीज हैं, वो एम्प्लॉयज हैं, बिल्कुल खुशियों में शामिल है। माहिर इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बहावलपुर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में क्रिसमस के हवाले से केक कटिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया। एमडी और सेक्रेटरी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने मुलाजमीन के साथ मिलकर केक काटा। सफाई कंपनी ने तमाम मसीही मुलाजमीन को एडवांस सैलरी भी अदा कर दी। एमडी और सेक्रेटरी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने मुलाजमीन के साथ मिलकर केक काटा। सफाई कंपनी ने तमाम मसीही मुलाजमीन के एडवांस सैलरी भी अदा की। कंपनी सेक्रेटरी ने कहा, तमाम मसीही स्टाफ हमारे भाई हैं। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए रोशनी।